हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसका क्वेश्चन हर बार आया है, तो पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे ये कोई कर्व है, वो लाइन जो इस कर्व को केवल एक पॉइंट पर टच करे, वो इस कर्व की टेंजेंट कहलाती है। So this is tangent to this curve, and this point P, which is generally represented by x1, y1, is the point of contact, and this line is called tangent to the curve. So the line AB is tangent to the curve at the point P. One thing is normal. This line is called normal to the curve. So what is a normal? It is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact. Normal is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact. मैथ्स में नॉर्मल वर्ड परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है. So this is normal. So tangent is a line which touches the curve only at one point, and normal is a line which is perpendicular to the tangent at the point of contact. So the point of contact is on the curve as well as on the tangent. It is also on the normal. सबसे पहली बात है स्लोप ऑफ टेंजेंट. dy by dx is called slope of tangent. असल में कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन और पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन की खोज दो जनों ने करी थी एक ही समय पर, न्यूटन ने और लाइबनिज ने. न्यूटन ने ये करी थी टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, और लाइबनिज ने करी थी टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. तो डेरिवेटिव की खोज ही स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के लिए हुई थी. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? जस्ट डेरिवेटिव. दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. नाउ do you know, you can guess what is slope of normal? Slope of normal. You know, normal is a line perpendicular to the tangent. The slope of normal must be the negative reciprocal of the slope of tangent. So the slope of normal is 1 upon dy by dx. The third thing is equation of tangent. Equation of tangent is y minus y1 equals m x minus x1. What is m? M is slope of the tangent at the point of contact. This is m. तुमने 11th में पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है, उसके आधार पर ये इक्वेशन है स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज द पॉइंट, दिस इज द स्लोप. फोर्थ इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? It is y minus y1 equals minus 1 upon m x minus x1. Just the slope is different. Okay. अब है
पांचवा पॉइंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, then dy by dx equals 0। जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। ये बात याद रखने वाली है। तो टेंजेंट इज अ लाइन, यू कैन अंडरस्टैंड टेंजेंट इज अ लाइन एज वेल एज नॉर्मल इज अ लाइन। तो अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। सिक्स्थ पॉइंट, if tangent is parallel to the y-axis, tangent is parallel to the y-axis, then minus 1 upon dy by dx equals 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जब टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल होगी तो नॉर्मल x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी हमें पता है उसका स्लोप 0 होगा। तो when tangent is parallel to the y axis, then the slope of normal will be 0। Seventh point is, if tangent is parallel to a line, then slope of tangent, which is dy by dx, will be equal to slope of the line, because when two lines are parallel, their slopes are equal. And the last and the eighth point is, if tangent is perpendicular to a line, then dy by dx equals minus 1 upon slope of the line। अब अगर तुम्हें ये 8 पॉइंट्स आते हैं तो तुम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के सवाल कर सकते हो। आइए देखते हैं। सवाल है, दिस इज द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट x इक्वल्स टू। तो पहले हम निकालेंगे dy by dx, it is equal to 3x square minus 1। What is this? This is slope of tangent at any point x. We want to find the slope of tangent at the point when x equals 2. So therefore, required slope equals dy by dx at x equals 2, which is 3 2 square minus 1, which is 11. So the required slope, that is slope of to this curve at the point x equals to, is 11। अब सवाल है, इस कर्व पर वो पॉइंट निकालो जिस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/3। सीधी सी बात है, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो। तो dy by dx इक्वल्स, इसका डेरिवेटिव हुआ
1/2 रूट और फिर जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव 0। ये कितना आ गया 2 come 2 2 ज़ा this is 2/√of 4x minus 3. This is the derivative this. अच्छा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होता है dy by dx. तो also dy by dx equals 2/3. So therefore 2/√4x minus 3 equals 2/3. It implies 1/√4x minus 3 equals 1/3. It implies 3 equals 4x minus 3. Cross multiply. It implies 9 equals 4x minus 3. Right? Squaring both sides. It implies 12 equals 4x. It implies therefore x equals 3 and therefore y equals. अब y कैसे निकालें क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व पर होगा तो कर्व में x की वैल्यू 3 रखते हैं और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकाल देते हैं 4 into 3 minus 3 and minus 1 it is equal to 3 minus 1 equals 2. Therefore, the required point equals पहले x लिखेंगे x है 3 and y है 2 right so this is the required point okay question is find equations of all lines having slope 2 and being tangent to this क्वेश्चन जरा मोल्ड करके बोला गया है असल में क्या है lines being tangent right so this is the slope of the tangent तो सबसे पहले कर्व नोट करते हैं कर्व ऐसे नोट करते हैं y equals -2/x minus 3 और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे नोट करो कि dy by dx equals to these two informations are given and we have to find the equations of such lines सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव होगा -2 तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा और x minus 3 का होल स्क्वायर नीचे x minus 3 ऊपर -2 का डेरिवेटिव कर दिया 0 फिर -2 ऊपर और नीचे वाले का फिर माइनस किया और उसके बाद -2 ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे एक तरह से हमने मतलब क्वेश्चन रूल लगाया है तो ये हो गया 2/x minus 3 whole square right our question is find equations of all lines having slope 2 and being tangent to this curve सवाल को जरा मोल्ड करके दिया गया है असल में लाइंस बीइंग टेंजेंट
यानी दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व को नोट किया हमने, कर्व को हमने ऐसे नोट किया और फिर उसको ऐसे लिख लिया, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स दिया है उसको हमने कैसे नोट किया। हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने dy बाई dx करके नोट किया। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो therefore dy बाई dx इक्वल्स -2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, -1 नीचे x -3 की पावर -2 और फिर x -3 का डेरिवेटिव 1, सो ये बन गया 2 अपॉन x -3 का होल स्क्वायर। ये भी dy बाई dx, ये भी dy बाई dx। हमें क्या करना चाहिए, 2 अपॉन x -3 होल स्क्वायर इक्वल्स 2। इट implies 2 1 are 2, 1 upon x minus 3 whole square equals 1. It implies x minus 3 whole square equals 1. Reciprocating both sides. इसको भी उल्टा कर दिया और 1 का उल्टा भी 1. तो it implies x minus 3 equals plus minus 1. It implies x minus 3 equals 1 and x minus 3 equals minus 1. It implies x equals 4 and x equals 2. Right? अब हम कहेंगे if x equals 2, if x equals 4, y equals, कैसे निकालेंगे y, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये कर्व पर भी होगा, तो x की वैल्यू इसमें डालेंगे और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लेंगे। -2 अपॉन 4 minus 3 equals -2. If x equals 2, y equals -2 upon 2 minus 3 equals 2. Therefore, the points of contact, दो आ गए, एक तो 4 minus 2 और दूसरा 2 2, right? Therefore, equations of the tangents क्या हो गई, इस पॉइंट के हिसाब से हो गई, क्योंकि फार्मूला क्या है, फार्मूला है y minus y1 m x minus x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y प्लस 2 और m कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 दिया हुआ है, एंड x माइनस 4, और दूसरी क्या हो गई, दूसरी हो गई y माइनस 2 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। इन दोनों को हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व at which the tangent is parallel to the x-axis। सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग we get this is
2x upon 4 plus 2y upon 25 dy by dx इक्वल्स 1 का डेरिवेटिव 0। दरअसल इधर क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन रूल की जरूरत तब होती है जब डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल हो। हमने कैसे सोचा कि 1/4 तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में रहा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसी तरह से इसका डेरिवेटिव हुआ 2y/25 और क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव भी किया और साथ में dy by dx भी लिखा। अब इट इंप्लाइज 2y/25 dy by dx equals -2x upon 4, 2 से 2 cancel. It implies dy by dx equals -x upon 4 into 25 upon y minus 25x upon 4y. This is our dy by dx. अब वो कहता है वो पॉइंट निकालो जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, if tangent is parallel to the x axis, then क्या कंडीशन है कि डेरिवेटिव दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी 0. इट इंप्लाइज -25y upon 4 -25x upon 4y equals 0. It implies x equals 0. If पहले 4y उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 आ गया और फिर 0 upon -25 0 हो गया, तो x equals 0. If x equals 0, x equals 0 इसमें रखा तो क्या आ गया, y square upon 25 equals 1. It implies y square equals 25. So it implies y equals plus minus 5, right? So therefore required point रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए, x तो 0 और y प्लस माइनस 5। असल में 2 पॉइंट्स हैं, ऐसे भी लिख सकते हो 0 5 and 0 minus 5, right? So these are the points where the tangent is parallel to the x-axis. The second task which he is asking is that find the points where the tangent is parallel to the y-axis. Points where the tangent is parallel to the y-axis. Now, if tangent is parallel to the y-axis, if tangent is parallel to the y-axis, then normal is parallel to the x-axis. हमें तो ये देखना है कि कौन सी लाइन x-axis के पैरेलल है, क्योंकि जो x-axis के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होगा। अब अगर टेंजेंट y-axis के पैरेलल है तो नॉर्मल x-axis के पैरेलल है, तो नॉर्मल का स्लोप 0 होगा। तो व्हाट विल वी से,
then minus 1 upon dy by dx equals 0. It implies 4y upon 25x equals 0. It implies y equals 0. और आगे फिर वही है, if y equals 0, इसमें y equals 0 रखा तो हम कहेंगे if y equals 0 तो x square upon 4 equals 1. It implies x square equals 4. So it implies x equals plus minus 2. Therefore, required points, they are 2 0 and minus 2 0. Okay. The question is to find the equation of tangent to this curve. Equation of tangent to this curve where it cuts the x-axis. सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को एक्सपेंड करो, ये हो गया x माइनस 7 और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट. Therefore dy by dx equals, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है तो हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर नीचे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऊपर, और पहले x माइनस 7 का डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस करके x माइनस 7 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव करेंगे. इट इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 1 माइनस x माइनस 7 and 2x minus 5 upon x square minus 5x plus 6 का whole square, right? This is x square minus 5x plus 6 minus, अभी ध्यान देते हैं, 2x square minus 5x minus 14x plus 35 whole upon x square minus 5x plus 6 का whole square. This is x square minus 5x plus 6 minus 2x square. ये हो गया minus 19x, तो plus 19x and minus 35 upon x square minus 5x plus 6 का whole square equals this is x square minus 5x plus 6 का whole square, तो डिनोमिनेटर में x square minus 2x square then minus 5x plus 19x then 6 minus 35. This is the derivative, right? अब when the curve cuts the x-axis, the y-coordinate is 0. If the line where the line
cuts x-axis the y coordinate is the y is 0, राइट। तो इक्वेशन में अगर मैं y को 0 रख दूं तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x minus 3. It implies 0 equals x minus 7 and it implies x equals 7. Therefore, the point of contact equals 7, 0. अच्छा, therefore, m, what is m? Value of derivative at the point of contact. Here we need only x equals 7. अब अगर इसमें x equals 7 रखते हैं तो ऊपर क्या आ गया, -49 प्लस 70, -98 एंड -29, नीचे आ गया 49 माइनस 35 प्लस 6. This is 20 upon 20 का square. It is equal to 1 upon 20. Because -49 minus 29 is -78 plus 98 is 20. Therefore, equation of the tangent is क्या फार्मूला है, y माइनस y1 m x माइनस x1. फार्मूला एक बार जरूर लिख लेना चाहिए. और ये क्या बन गया, ये बन गया y माइनस y1 कितना है 0 इक्वल्स स्लोप इज 1 अपॉन 20 एंड x माइनस 7. इसको हल्का सा फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. क्वेश्चन सिंपल सा है. इस कर्व पर, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ. तो पहले डेरिवेटिव निकालते हैं. डिफरेंशिएटिंग गेट 2 अपॉन 3 x की 2 अपॉन 3 माइनस 1 सीधा लिख देते हैं, -1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 y की पावर में 2 अपॉन 3 माइनस 1 और साथ में क्योंकि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो dy बाय dx और 2 का डेरिवेटिव 0. It implies 2 अपॉन 3 y की -1 अपॉन 3 dy बाय dx equals 2 upon 3 x की -2 upon 3. 2 upon 3 से 2 upon 3 कैंसल, dy by dx ये इधर माइनस का हुआ तो ये हो गया dy by dx equals this is x की पावर -1 upon 3 थी तो dy by dx equals माइनस x की -1 upon 3 अपॉन y की -1 upon 3. That is minus y की 1 upon 3 अपॉन x की 1 upon 3 माइनस y अपॉन x का क्यूब रूट, राइट. तो therefore m कितना हो गया, m हो गया डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो x की जगह भी 1 रखा, y की जगह भी 1 रखा
ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 1/1, बाहर माइनस है, दिस इज -1, राइट। Therefore, equation of tangent क्या होगी, y minus y1 m x minus x1. It implies y minus 1 minus 1 x minus 1. It implies y minus 1 equals minus x plus 1. So therefore, x plus y equals 2. This is the equation of tangent. और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, equation of normal is y minus y1 minus 1/m x minus x1. It implies y minus 1 1 x minus x1 x minus 1. It implies y minus 1 x minus 1. Therefore, y equals x. This is the equation of normal. इस प्रकार हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल के कंसेप्ट्स को समझा और उसके कुछ बढ़िया सवाल देखे। इसके कुछ और सवाल भी करने जरूरी हैं।